Let us go with the concept of full adder. Now, when I say a concept of full adder, what does it actually mean? It actually means I'll be having two inputs. So normally in the case of half adder, if you have seen, I only have a concept of two inputs. Okay. But in the case of full adder, I am going to have three inputs. Now what are the three inputs? A, B, and the third input is called as carry in, CI. We have got two outputs, sum and carry out, CO. So for two inputs, I am going to have 7 combinations. 7 in the sense 0 to 7 matlab 8 combinations. Why 8? Because 2 is to 3 inputs, that is how much? 8. So 8 combinations I am going to have. So to begin with, let me first make the table. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 5, 6, and 7. Okay. So now I'm going to make combinations, 7 combinations, starting with 0, 1, 2 is 0, 1, 0, 3 is 0, 1, 1, 4 is 1, 0, 0, 5, 1, 0, 1, 6, 1, 1, 0, and 7, 1, 1, 1. It is going to have two outputs. So 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is again 0. So sum 0, carry 0. 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, carry 0. 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is again 1 and 0. 0 plus 1 is 1, 1 plus 1, carry 1, sum 0. 1 plus 0 is 1, again 1 plus 0 is 1 and 0. 1 plus 1, sorry, 1 plus 0 is 1. 1 plus 1, sum 0, carry 1. 1 plus 1, carry 1, sum 0. Now this 0 plus 0 is how much? 0. 7, 1 plus 1 is carry 1, sum 0. 0 plus 1 is 1. Like this. Now I need to make a K-map. So how many K-maps will I have? Number of outputs gives you number of K-map. Number of outputs is equal to number of K-map. Like this. Number of output is equal to number of K-maps. So 2 K-maps I am going to have. So if you just refer the K-map for 3 inputs what we have seen, we will come to know. So here I will be having A and B. Here CI. So AB, 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 CI, CI. Bar, bar, bar and bar. बार हो गई. नंबरिंग कैसा करेंगे हम लोग? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ये नंबरिंग होगा. Now let us consider the entry in the K-map I am giving for sum. ये sum का K-map. तो sum का 1 कहाँ पे है? 1 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है and 7 पे है.
So 1, 2, 4, and 7. Okay. On the same basis, I am going to make a K-map for okay. So this is AB, CI, AB, 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 CI, CI, बार 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 एंड बार बार. इसमें एंट्री कैसे करेंगे हम लोग? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. अब चेक कीजिएगा, हम लोग जो कैरी आउट कर रहे हैं, कैरी आउट का 1 कहाँ कहाँ पे? सो इट इज एट 3, 5, 6 एंड 7. 3, 5, 6 and 7. So 3, 5, 6 and 7. अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? आई टेल यू अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ दिस पॉइंट फर्स्ट. हम लोग मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ग्रुप करने का ट्राई करें. तो इसमें मैक्सिमम ग्रुप 8 में मैक्सिमम ग्रुप 8 का हो सकता है. उसके बाद में उसका हाफ मतलब 4 का हो सकता है. 4 का हाफ मतलब 2 का हो सकता है. 2 का हाफ मतलब 1 का हो सकता है. So you cannot make a grouping of 3, 5, 1, 3, 5 and 1. Not possible because हम लोग हमेशा इवन नंबर्स का करते. इवन इन द सेंस, ये अगर आप देखते हो तो ये सब 2 के पावर की ग्रुपिंग का है. तो यहाँ पे मैं इन दोनों 1 का एक ग्रुप कर सकता हूँ. उसके बाद में ये अकेला 1 बचा है, तो इसको मैं फिर से इस 1 के साथ ग्रुप कर सकता हूँ. यहाँ पे एक अकेला 1 बचा है, तो इसको मैं इस 1 के साथ भी ग्रुपिंग कर सकता हूँ. सी, व्हाइल मेकिंग द ग्रुप, अगर एक 1 बार बार ग्रुप में आ रहा है, जैसे कि आप इस 1 को देख सकते हो, तो चलेगा. इट इज एक्सेप्टेड, इट इज ओके. लेकिन ये 1 ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए मैं सिर्फ इसी का ही 1 का ही ग्रुपिंग करूंगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. आपको मैक्सिमम नंबर्स ऑफ 1 का ग्रुपिंग करना है. ये काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. यू शुड मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 का ग्रुपिंग. तो अभी हाउ टू मेक अ इक्वेशन, हाउ टू मेक अ इक्वेशन वो आप लोग अभी समझ लीजिए कि इक्वेशन मुझे कैसे बनाना है. ब्राउन पेन चेक कीजिए. ब्राउन पेन आपका ऐसा वर्टिकल है, तो वर्टिकल में कॉमन क्या है? ए और बी कॉमन. ठीक है, तो ए और बी कॉमन वर्टिकल में हो गया. हॉरिजॉन्टल चेक कीजिए, यहाँ पे सी बार है और यहाँ पे सी है. so we know that c plus c bar by default is equal to 1. यहाँ पे c बार या c लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं. सिर्फ हमको कितना मिलेगा? ab मिलेगा. ओनली ab. दैट्स इट. लेट अस कम टू दिस पेन नाउ, पर्पल पेन. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चेक कीजिए. हॉरिजॉन्टल को ऊपर चेक कीजिए. कॉमन क्या क्या है? कॉमन कॉमन a कॉमन, मतलब a आएगा, क्योंकि b एंड b बार इज व्हाट 1. हॉरिजॉन्टल में चेक कीजिए कॉमन क्या है? c बार है. तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? c i. बस इतना ही आएगा. दैट्स इट. ओके. उसके बाद में लेट अस गो फॉर द रेड पेन. रेड पेन में ऊपर क्या कॉमन है? ऊपर बताइए फटक से. बी कॉमन है. बी कॉमन है और यहाँ पे कॉमन क्या है? सी आई कॉमन. इसका मतलब अपना सी ओ का एक्सप्रेशन जो है वो क्या बनेगा? इट इज गोइंग टू बी ए बी प्लस ए सी आई प्लस बी सी आई.
दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैरी आउट। अभी मुझे सम का चेक करना है, तो सम का अगर मैं चेक करता हूं तो ये दोनों ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, ये दोनों ग्रुपिंग पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करें? तो लेट अस गो फॉर सिंगल ग्रुपिंग, ओनली वन ग्रुप। तो अगर मैंने एक ही ग्रुप कर दिया तो कितना हो जाएगा ये? इट इज गोइंग टू बी ए बार बी, ऊपर यहाँ पे कितना हो जाएगा? सी आई। ओके, उसके बाद प्लस ये सिंगल वन का ग्रुपिंग कितना आएगा बताइए फटाक से। तो इसका होगा ऊपर क्या है? ए बार बी प्लस यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी इनटू कितना? सी आई बार, ए बार बी एंड सी आई बार, प्लस ये सिंगल ग्रुपिंग कितना आएगा ऊपर? ए बी एंड सी आई, सो ए बी एंड सी आई, प्लस ये सिंगल कितना आएगा? ए बी बार, ए बी बार, यहाँ पे कितना आएगा? सी आई बार, ए बी बार सी आई बार, आपको ये इतना आएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द ऑथेंटिक आंसर ऑफ योर सम पार्ट। मतलब कौन सा पार्ट? ये वाला। तो सम का इक्वेशन क्या है? ए बार बी सी आई प्लस ए बार बी सी आई बार प्लस ए बी सी आई प्लस ए बी बार सी आई बार। ये आपका हो गया सम का आंसर। बट स्टिल द प्रॉब्लम इज नॉट ओवर। अब मुझे इसका सर्किट इंप्लीमेंटेशन करना है। सो चेक कीजिए, आपके पास फुल एडर में what was the expression for sum का expression was a bar b ci plus ab bar ci bar, a bar a b bar ci bar, बाद में था प्लस ए बी इंटू सी आई प्लस इट वॉज ए बी बार सी आई, चेक कीजिए, ये ए बार बी सी आई बार था और यहाँ पे लास्ट में क्या था? ए बी बार सी आई बार, ऐसा था। सम का हो गया। उसके बाद में इसको थोड़ा सा हम लोग व्हाट वी कैन डू, इसको थोड़ा सा हम लोग और एक प्रॉपर फॉर्म में लाने का ट्राई करें। तो हाउ कैन वी ब्रिंग इट इन द प्रॉपर फॉर्मेट? इफ यू जस्ट लुक, ए बार बी बार, यहाँ से मैंने ए बार बी बार उठाया, प्लस मैंने क्या किया? ए बी बार ए बी किया। कॉमन क्या निकलेगा इसमें से? सी आई कॉमन निकले। मतलब मैंने पहला ये इक्वेशन और ये इक्वेशन यूज किया यहाँ पे, प्लस प्लस व्हाट आई कैन डू नाउ, आई कैन गो फॉर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार द होल कॉमन, कॉमन विथ व्हाट कंडीशन? सी आई बार। मैंने ये इक्वेशन पुटअप की। ओके, थोड़ा सा समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ करके, बिकॉज आई वॉन्ट टू मिनिमाइज द, नॉट मिनिमाइज एक्चुअली, ये मिनिमाइजेशन नहीं है, इट इज समथिंग डिफरेंट। मतलब इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में लिखने का ट्राई कर रहा हूँ। प्रॉपर फॉर्म मतलब कैसा? आई कैन मेक दिस इन द फॉर्मेट ऑफ, इन द एंड, मतलब शॉप एंड पॉज इक्वेशन में लाने का मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर आप ये देख रहे हो, ये अपने पास क्या है? ए बार बी बार प्लस ए बी, यहाँ पे है ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये जो अपना गेट है, ये जो अपना गेट है, ये अपना कौन सा गेट है? एक्स नॉर गेट है। और ये जो अपना गेट है, ये कौन सा गेट है? एक्स और गेट है।
बोथ आर व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है, ये बात को समझ लीजिए। एक्स नॉर को या एक्स और को मैंने अगर कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स नॉर मिल जाएगा। एंड वाइस वर्सा, एक्स नॉर को मैंने अगर कॉम्प्लीमेंट कर दिया मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स और ये मुझे मिल जाएगा। तो उसी फॉर्मेट में करने का ट्राई करते हैं, बहुत सिंपल है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं। मतलब कैसा, ए बार बी बार प्लस ए बी, इसको मैंने डबल कॉम्प्लीमेंट कर दी। मीनिंग तो चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग शुड नॉट चेंज। डबल कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यहाँ पे मुझे कितना मिला, सी आई मिला, प्लस इसको एज इट इज रखा। मतलब कितना, ये ए बार बी प्लस ए बी बार कॉमन विथ सी आई बार। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो इतना पॉइंट है, इतना पॉइंट, ये आपका बन जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर नहीं मिला तो मुझे बताइए, मैं वापस आपके लिए सॉल्व करता हूं। मतलब द एक्सप्रेशन फॉर सम बिकम्स इन द फॉर्मेट ऑफ ए बार बी प्लस ए बी बार द होल बार इंटू कितना, सी आई प्लस, ये आपका एज इट इज है, ए बार बी प्लस ए बी बार द होल कॉमन इंटू कितना, सी आई बार। अभी थोड़ा और, थोड़ा डीप एनालिसिस। इसको मैंने अगर ए पकड़ा, इसको मैंने बी पकड़ा, इसको मैंने अगेन ए पकड़ा, इसको मैंने बी पकड़ा, तो ये आपका सम का इक्वेशन क्या हो गया, सम इज नथिंग बट ए बार बराबर है बी प्लस ए इंटू कितना, बी बार। ये ऐसे फॉर्मेट में हो जाए। मतलब द मोस्ट वर्सेटाइल एक्सप्रेशन फॉर सम becomes in the format of a bar b plus ab bar, that is nothing but a x और b x और c i। ये उसका फाइनल एक्सप्रेशन बन गया, a x और b x और c i। अगर आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको और छोटा करता हूं मैं। so it becomes in the format of a x और b x और प्लस सी आई। ये आपका हो गया प्योर सम का एक्सप्रेशन। ओके, ये सम का तो हो गया। अब इसके बाद क्या, अपना और एक पॉइंट बाकी है, वो क्या है, अपना कैरी का पॉइंट बाकी है। तो कैरी का इक्वेशन क्या आएगा, जरा वो चेक करना पड़ेगा मुझे। आई नीड टू चेक व्हाट कुड बी द एक्सप्रेशन फॉर कैरी। तो चेक कीजिए, हमने कैरी का एक्सप्रेशन क्या किया, कैरी आउट का। तो कैरी आउट का क्या था, इट वॉज ए बी प्लस ए सी आई प्लस बी सी आई। ओके, इट वॉज ए बी बी सी आई एंड ए सी आई। आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको इफ यू वांट यू कैन चेक इट, विल गेट द सेम एक्सप्रेशन। ये अपना हो गया कैरी का एक्सप्रेशन। कैरी भी खत्म हो गया अपना, तो सम भी हो गया, कैरी भी हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इनका डिजाइनिंग करना है। ओके, अभी मुझे इसको गेट के साथ डिजाइन करना है। आई नीड टू डिजाइन द गिवन फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ गेट। तो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पार्ट। मतलब अभी मुझे क्या करना है, मुझे ओ माय गॉड, फॉर सम इट वाज ए एक्स और बी एक्स और और प्लस सी आई, सी, and for carry out it was what, ए बी ab प्लस ए सी आई aci प्लस plus प्लस बी सी आई। bci। ओके, तो अभी ये तो डायरेक्ट एक्सोरिंग है, डायरेक्ट एक्सोर ऑपरेशन है ये जो ऑपरेशन है आपका, ये एक, ये दो, ये तीन, ये आपके एंड ऑपरेशन होगी।
एंड ये जो आपके बचे हुए 3 ऑपरेशंस जो है, मतलब ये प्लस ये आपके हो गए ऑरिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये ऑरिंग ऑपरेशन हो गए। तो ये आपका हो गया शॉप इक्वेशन। शॉप मतलब क्या होता है? सम ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है, उनका सम किया है, ये शॉप हो गया, शॉप इक्वेशन, सम ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है? इंप्लीमेंट करना बहुत ईजी है। आप 3 लाइन बनाइए, 1 2 3। यहाँ पे लिखिए ए बी और ये सी आई। ए बी, ए बी, बाद में ए सी आई, ए और सी आई, ए एन सी आई, बाद में बी सी आई, बी एन सी आई। और इनको क्या करना है आपको? ऑरिंग करना है। ओके, ऑरिंग। तो ये आपका हो गया सीओ ऑपरेशन। उसके बाद में ए एक्स और बी एक्स और सी, ए एक्स और बी एक्स और सी, एक्स और ऑपरेशन है। ये आपका हो गया सम, सम का कंडीशन। अगर आपको ये कॉलेज में नहीं सिखाया होगा 3 इनपुट का एक्स और, तो हम लोग इसको 2 इनपुट से भी कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रहा हूं। पहले आप 2 लीजिएगा। तो ये आपका हो गया ए एक्स और बी। उसका जो आउटपुट होगा वो सी के साथ कीजिए, ऐसा। तो ये भी चलता है, ये ब्लू पेन भी चलेगा आपको। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, दैट इज इट। तो ये आपका हो गया एक पूरा फुल एडर कंडीशन। तो अगर इसको मुझे ब्लॉक डायग्राम में लिखना है, इफ आई वांट टू ड्रॉ विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक डायग्राम, तो मैं ब्लॉक डायग्राम में कैसे दिखूंगा? मेरे पास होंगे 2 हाफ एडर। हाफ एडर में इनपुट जाएगा, यहाँ पे होगा ए और बी। यहाँ पे जो बाहर निकलेगा वो कौन सा होगा? ए प्लस बी होगा। यहाँ पे सम निकलेगा, सॉरी, कैरी निकलेगा। अगर मैं इस कैरी को आ, आगे जाके ऐड करता हूं, ओके, इफ आई ऐड द कैरी, मतलब कैसा? ये कैरी एंड, ठीक है, यहाँ पे बैठ नहीं रहा है मुझे, तो मैं दूसरे पेज पे बनाता हूँ। ओके, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एडर यूजिंग बेसिक गेट्स प्लस यूजिंग द डिराइव्ड गेट्स, दैट्स इट। हाँ, बिफोर आई प्रोसीड, एक फटाफट एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं फुल एडर का। फुल एडर ब्लॉक डायग्राम। तो आपके पास कैसा होगा? यू विल बी हैविंग अ हाफ एडर, जिसमें एक इनपुट ए होगा, बी होगा। यहाँ पे सम 1 होगा, सम 1 मतलब ए एक्स और बी होगा। यहाँ पे आपका होगा सी 1, सी 1 लिखता हूं मैं रेफरेंस के लिए। नाउ दिस इज गिवन टू अनदर हाफ एडर, जहाँ पे ये सम के साथ साथ आपके पास यहाँ पे सी आई होता है, मतलब कैरी इनपुट। और ये जो आपको सी 1 मिला है, सी 1 क्या होगा? सी 1 यहाँ पे आके इसके साथ और हो जाएगा। ये आपका हो गया कैरी आउट, ये आपका हो गया सम, दैट्स इट। दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फुल एडर। मतलब 2 हाफ एडर को मिला के मुझे एक फुल एडर मिलता है।
The addition of two half adder gives me a full adder. Simple, ekdam simple concept. Let us now go for the concept of full subtraction. So full subtractor में अपने पास इनपुट्स होंगे A, B and borrow in BI. And output is going to be difference and borrow out. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, यहाँ 8. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो यहाँ पे आपका इनपुट कैसे होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ओके, उसके बाद में 0 minus 0 minus 0, difference 0, borrow 0. 0 minus 0 is 0. 0 minus 1 is not possible, so I took 1 borrow. So if I make it 1, it becomes 2. 2 minus 1 is how much? 1. 0 minus 1 not possible, I took a borrow. It becomes how much? 2. 2 minus 1 is what? 1. 1 minus 0 is again 1. 0 minus 1 is not possible, I again took a borrow. यहाँ पे मेरे को कितना हो गया? 1 हो गया. So 2 minus 1 is how much? 1. And 1 minus 1 becomes कितना? 0. 1 minus 0 is 1. 1 minus 0 is 1. Borrow 0. 1 minus 0 is 1. 1 minus 1 is 0 and 0. 1 minus 1 is again 0. 1 minus 0 is how much? 0. 0 minus 1 is not possible. I took 1 borrow. Okay. Hey, I'm sorry. 0 minus 1. Sorry. 1 minus 1 is 0. 1 minus 0 is 1. So I'll be having 1 over here. 1 and 0. 1 minus 1 is 0. 0 minus 1 not possible. I took 1 borrow. It becomes 2. 2 minus 1 is how much? 1. तो अभी जरा सा चेक कीजिएगा इसका आंसर कितना आता है. सो व्हाट इज द आंसर? सो मेरा जो डिफरेंस है, डिफरेंस का आउटपुट 1 कहाँ कहाँ पे? 1, 2, 4, 6 and 7. Okay, 1, 2, 4, 6 and 7. Now before I proceed, please let us check whatever we have done is right or wrong, because we don't know whatever I have done is right or wrong, because एग्जाम में ऐसे ही होता है कि हमको पता चलता ही नहीं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है. So what is a better way? So better way is to have some cross verification technique with what with the previous point. This is a better way which we can do it. The better way is to have a cross verification technique of whatever we are doing is right or wrong. तो उसको कैसे चेक करते हैं? हाउ टू हैव अ क्रॉस वेरिफिकेशन टेक्निक. मुझे एक बात बताइए, पिछले सम में सम का आउटपुट 1 कहाँ कहाँ पे था? पिछले सम में सम का आउटपुट कहाँ कहाँ पे 1 था? In the previous problem, where was the output of the sum 1? Can anyone tell me? 1, 2, 4, 7. Yes. It was 1, 2, 4 and 7.
तो चेक कीजिए 1 बराबर है, 2 बराबर है, 4 बराबर है, 6 में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे आई हैव करेक्ट द वैल्यू, ये कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लमेटिक है। क्या प्रॉब्लम है, लेट अस चेक। मतलब याद रखिएगा फुल सबट्रैक्टर में डिफरेंस जो है वो हमेशा एडर का सम के साथ मैच होना चाहिए। ये ट्रिक है डिफरेंस का, मतलब सबट्रैक्टर में डिफरेंस एंड एडर का सम हमेशा मैच होनी चाहिए। अगर मैच होते हैं तो ये अपना आंसर राइट। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है अभी हम लोग वो देखते हैं। तो भी चेक कीजिए 1 माइनस 1 इज एक्चुअली 0, देन 0 माइनस 0 इज अगेन 0, यहाँ पे 0 होगा। अगर ये 0 है तो 1, 2, 4 एंड 7 इज अ परफेक्ट आंसर। मतलब अपना डिफरेंस जो है वो कितना हो गया, वो भी होता है आपका 1, 2, 4 एंड 7। दिस इज अ शॉर्टकट टेक्निक ऑफ क्रॉस वेरिफिकेशन, ऑफ क्रॉस वेरीफाइंग द आंसर। ये एकदम शॉर्ट, मतलब एकदम शॉर्टकट टेक्निक है, एकदम शॉर्टकट टेक्निक। ओके, ये ओके, ये पॉइंट हो गया ये। अभी हम लोग जाते हैं अपने बोरो आउट की तरफ। अब मुझे बताइए बोरो आउटपुट का 1 कहाँ कहाँ पे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, लास्ट में कितना है 7, 1, 2, 3 एंड 7। ओके, so can anyone tell me what was the output of difference? 1, 2, 4, 7. Yes, 1, 2, 4 and 7. And for borrow out 1, 2, 3 and 7 I guess. 7. परफेक्ट है। हाँ, आप मुझे एक काम कीजिए, आप ना बोरो आउट का मुझे के मैप बना के दिखाइए। मतलब क्या आपके हिसाब से क्या आंसर आता है मुझे बताइए, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। तो यहाँ पे होगा अपना ए बी, यहाँ पे होगा आपका बी आई। सो ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, बार 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 एंड बार, यहाँ पे बी आई बार, यहाँ पे बी आई। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ये अपना ऐसा इक्वेशन है। तो अभी अपना 1 कहाँ कहाँ पे है, 1 कहाँ कहाँ पे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 7, यहाँ पे 1। तो मुझे इसका ग्रुपिंग करके आंसर कितना आता है बताइए। पहले ग्रुपिंग कितना हुआ है मुझे बताइए। ये एक ग्रुप हो सकता है, 3 grouping. 3, परफेक्ट है। तो इट बिकम्स ए बार बी, ग्रीन पेन हो गया, उसके बाद में रेड पेन, ये एक हो सकता है। इसका कितना है आंसर रेड पेन का? सर वो BBI होगा ना? परफेक्ट है, परफेक्ट, बी एंड बी आई परफेक्ट है। और उसके बाद आता है पर्पल, इसका कितना होगा? नहीं फेमस कलर मत, A bar B है। इसका होगा ए बार एंड बी आई, परफेक्ट है। तो खत्म हो गया, के मैप खत्म हो गया। अगर आप डिफरेंस का देखोगे के मैप, तो उसका ग्रुपिंग एक भी नहीं होगा। तो आपके पास जो डिफरेंस है, या लेटर से बोरो आउटपुट का आंसर कितना हो गया? इट इज ए बार बी आई प्लस ए बार बी प्लस बी बी आई, और जो डिफरेंस है आपका डी करके, उसका तो बाय डिफॉल्ट आंसर वही होगा, ए एक्स और बी एक्स और सी बी आई। दैट्स इट, दिस कंप्लीट्स द प्रॉब्लम। आई थिंक इसके बाद मल्टीप्लेक्सर है एंड डी मल्टीप्लेक्सर है, या आई कैन से एनकोडर एंड डिकोडर। ये पॉइंट बचे हैं अपने।
ये भी पूरा कर लेते हैं.